Good evening, everyone. We'll start with the class now. Turn on your cameras. And today we are going to start with the topic of first topic would be rheostat. So rheostat has a variable resistance. Since ये एक ऐसा device है जिसका resistance vary कर सकते हैं. We're going to understand how we can vary this resistance and what are the underlying principles. So here you can see this is a simple rheostat. And we have terminals from here. I'll take another diagram. So here are this terminals. There are 4 terminals here. और यहाँ पे एक sliding contact है. This is a sliding contact. This sliding contact, it can slide over this rail. This is a single rail, and the sliding contact can slide over this rail. Or suppose you have some device, you have a battery, suppose with some internal resistance. तो इसको अगर यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट किया, suppose, so there is a wiring is bound over here like this. इस पूरे सिलेंडर पे वायरिंग होती है एंड दिस रेजिस्टेंस दिस इज द टोटल, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस होता है एंड एज वी नो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो अभी यहाँ पे ये वाला टर्मिनल ए और ये वाला टर्मिनल बी यहाँ पे एंड्स कनेक्टेड है, सो रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. जितना रेजिस्टेंस है रियोस्टैट का, दैट विल बी इन द सर्किट. सो रेजिस्टेंस दिया होता है ऐसे कि रियोस्टैट का रेजिस्टेंस इज 0 to 200 ओम. तो अगर पूरे वायर से करंट पास हो रहा है, दैट मींस रेजिस्टेंस विल बी 200 ओम. बट देयर इज अनदर थिंग वी कैन डू. अगर यहाँ पे कनेक्ट ना करके यू आर कनेक्टिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द टर्मिनल ओवर हियर, ओवर दिस टर्मिनल हियर. अगर यहाँ पे कनेक्ट किया, सो व्हाट विल हैपन? सो करंट विल कम फ्रॉम हियर and let us say the slider is somewhere here. The slider is somewhere here. If the slider is here, then current यहाँ से pass होगा and after this it will go through the slider. Slider contact में रहता है वायर के and क्योंकि इस portion का resistance बहुत ही कम होता है because this is a hard metal, this is a good metal and this is very thick metal. यहाँ पे thin wires mount होते हैं तो इसका resistance significant होता है, इसका resistance significant होता है, but यहाँ पे इसका resistance it will be negligible. So the current passing will pass through the winding and then it will go through this slider and then the circuit will be completed. So slider जितना close रखेंगे terminal A के and slider जितना close रखेंगे terminal A के उतना ज़्यादा उतना कम resistance होगा और slider जितना दूर होगा उतना ज़्यादा resistance होगा. This is the principle of rheostat. And I'll show you the schematic diagram for it. So this works on the principle that resistance is directly proportional to the length of the wire. So we have the rheostat like this. तो यहाँ पे एक source है and this is a, you can say this is a switch and
We are connecting the rheostat at some length. So terminal A से connect किया, or you can connect it to terminal B here. यहाँ से terminal B से connect किया. And जो दूसरा section है, you can connect it to terminal C. So when connected with terminal C, the current will pass from here, and it will go into the wiring, but यहाँ से ये ज़्यादा resistance वाले पे नहीं जाएगा. It will circle around here and then go through the slider. And slider के portion में इतने portion में कोई भी resistance नहीं है. जो भी portion में जो भी resistance है वो इस portion में. Okay. So rheostat works on the principle that resistance is directly proportional to length. ये length जितना ज्यादा होगा resistance rheostat का उतना ही ज्यादा होगा. So this is a rheostat. We'll be writing a few lines over it, and okay, write it down. You can make this diagram first. ये वाला इसको simple सा diagram ऐसा बना सकते हैं, like this. You can make the diagram of rheostat like this. There is a slider. Slider can be represented like this. And terminals can be represented like this. So when it's connected to a battery, you'll be connecting it positive to this side and negative to the slider, like this. Draw this diagram first. अच्छा, इस पे वायर की बाइंडिंग होती है, that you can show, or can show some winding over here. ये जो वाइंडिंग होती है नाइक्रोम वायर की होती है. नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटालिक वायर्स, और ये ऑक्सीडाइज्ड होता है. ऑक्सीडाइज्ड है का मतलब कि अंदर तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर दो नाइक्रोम वायर कांटेक्ट में होंगे तो सरफेस उसका ऑक्सीडाइज्ड है. The surface is oxidized. The surface oxidized होगा तो the current cannot pass from one nichrome wire to other nichrome wire. This will not happen. That is why the surface is oxidized. So rheostat contains oxidized nichrome wire, and this sliding contact, it can move to and fro. And जैसे जैसे इसको मूव करेंगे तो लेंथ जिससे करंट पास हो रहा है वो चेंज होगा, एंड रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग. और वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. तो जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करेंगे तो डिफरेंट लेंथ ऑफ द वायर से करंट पास होगा, एंड रेजिस्टिविटी विल बी डिफरेंट फॉर ईच केस. So there are two main applications of a rheostat. First is it can be used as a current controller. To as it can be used as a current controller. Means suppose you have a rheostat, बाकी एलिमेंट्स है सर्किट के. So rheostat का symbol is like this. You make a resistance and then you put this symbol. So here, as the current depends on the resistance, and you can vary the resistance. Rheostat can be used to vary the resistance. तो यहाँ पे we can change current. By changing resistance, we can change current.
change or control current. सपोज कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिससे इतना ज्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए, then we can just suppose this is a bulb which is connected here and इतना ज्यादा करंट पास नहीं होना चाहिए इससे, so we can just put up a rheostat here and the current can be controlled. And the second application, it works as a potential divider. Note this down first, then we'll understand what is potential divider. Okay, we'll go through the second application. Second is it works as a potential divider. So suppose a battery is given to you and you want to divide its potential, बस कुछ portion ही use करना चाहते हैं इस potential का. So what we can do, rheostat के पूरे resistance से इसको connect कर देता है. थोड़ा लंबा बना रहा हूँ because we want to see how the potential will vary. तो current will pass through it. इससे करंट पास होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V. So if this is connected to terminal A, this is connected to terminal C, then potential difference of AC will be equal to potential difference of the battery or electromotive force of the battery. अब अगर इसका कुछ स्मॉल पोर्शन चाहिए, इस पोटेंशियल का कोई स्मॉल पोर्शन चाहिए, सपोज हाफ चाहिए. So for this, getting this half, so you can connect this external circuit, let us say it has some resistance, some bulb, and the second wala portion hai, can connect it to the, let us say at the center. At the center jahan pe slider hai, slider can move. Abhi slider if it is in the middle, then potential divide ho gaya half. V/2 और V/2. तो जो इस एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V/2 ही होगा. And the potential is divided here. So this is how the potential divider works. So instead of this writing the whole circuit, I'll just say that this is an external circuit. External circuit जिससे करंट या वोल्टेज का रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए. So V/2 है तो can divide it in any ratio less than V. V से कम होना चाहिए. V by some number n, let us say. You can divide the potential in such way. Let us call this point as S. So we can write by moving this slider, we can establish different potential less than V across the external circuit. Potential cannot be more than V, it will always be less than V. Okay. तो ये रियोस्टैट का जॉब है, एक ही जॉब है लाइफ में, दो जॉब बेसिकली. या तो इसको पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है या तो करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है. तो स्लाइडर पे ही अगर इफ यू सी एन एक्चुअल पोटेंशियल रियोस्टैट, तो स्लाइडर पे ही यहाँ पे साइड में लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है.
कि वोल्टेज कितना है और मैक्सिमम कितना करंट दे सकता है। तो वोल्टेज ऐसा लिखा होता है 0 to V volt, 0 to जीरो टू लेट अस से सॉरी 0 to R ohm, 0 to 200 ohm, 0 to 1000 ohm, 0 to 1 mega ohm, लाइक दिस। एंड दूसरा लिखा होता है कितना मैक्सिमम करंट इससे पास करा सकते हैं, जैसे 6 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसा लिखा होता है स्लाइडर पे। तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट होगा, देन यू कैन फिगर इट आउट कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं इस पर। Okay. After this, there is a concept of meter bridge, और we're going to see meter bridge को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद आएगा पोटेंशियोमीटर। सो मीटर ब्रिज के नाम से पता है कि ये 1 मीटर का होता है। एंड व्हाट इज दिस सेटअप, क्यों यूज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। सो फर्स्ट आई विल टेल यू कि क्या क्या ये कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो पता चल रहा है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसा ही होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। ऐसा डब्बा सही होता है। हम अपने लैब में बहुत ही एडवांस्ड सेल यूज नहीं करते, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही यूज करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसका ईएमएफ डब्बे के ऊपर लिखा होता है। आई एम कॉलिंग दिस डब्बा बिकॉज हमारे स्कूल में भी यही वाला डब्बा था। और पता नहीं लॉकडाउन कब तक है, कोरोना कब तक रहे, एक्सपेरिमेंट करने को मिले ना मिले, बट अगर मिले अपॉर्चुनिटी तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है। सो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट डिटेक्ट करना। सो अगर कुछ करंट पास हो रहा है इस वायर से, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे रखा हुआ एक स्विच, और इस चीज को बोलते हैं डब्बा, रेजिस्टेंस डब्बा वाला डब्बा, और रेजिस्टेंस बॉक्स। सो रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज है, 1 2 3 4, ये सारी कीज दिख रही है। और कुछ ऐसा सेटअप होता है अंदर से कि कीज पे ओम लिखे होते हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम, ऐसे ओम्स लिखे होते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम। सपोज 2 ओम वाला की निकाल दिया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। एक तरह से इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। सो एक रेजिस्टेंस बॉक्स का में रेजिस्टेंस पता होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज होती है। I'll show you another diagram for resistance box. So it's like this. तो यहाँ पे ऐसा होता है, ये नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 ऐसे, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। इनसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम। जैसे ये 100 ओम वाला की अगर निकाल दिया बाहर, सो योर रेजिस्टेंस विल बी 100 ओम। ऐसा सेटअप होता है कि जिस जहाँ पे जो की निकाल दिया उसका उतना इस रेजिस्टेंस बॉक्स का उतना रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दिस वर्क्स लाइक ए सिंपल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस पता है। वो छोटे वाले यूज नहीं करते, जो पिछले बार देखे थे कलर कोड वाले, वो यूज नहीं करते, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हीट के साथ वैरी करता है, टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। सो ये छोटे वाले यूज करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, सॉरी ये बड़े वाले बॉक्स यूज करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से। अगर ये टर्मिनल ए बी है तो इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी, और जो भी की निकाला उसका रेजिस्टेंस आर यहाँ पे आ जाएगा। अगर 100 वाला निकाला तो आर इज इक्वल टू 100 ओम, यू कैन राइट। मींस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस पता होता है। दिस इज योर रेजिस्टेंस वाला डब्बा। तो इसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है। और ये एक सेल था यहाँ पे, दिस वाज अ सेल, दिस इज अ की, ये है गैल्वेनोमीटर।
उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस होल अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू दिस वायर, ये यहां से यहां तक वायर जा रहे हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, पहले समझ लेते हैं। ये यहां से यहां तक वायर जा रहे हैं, और वायर के बगल में एक स्केल होती है। कुछ अलग स्टैंडर्ड सेट्स भी आता है जिसमें वायर के नीचे ही स्केल रखी होती है। सो यहाँ पे दिस वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस होता है एंड रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वैरी करता है। तो ये भी, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर इसमें करंट देखे तो क्या होगा, बैटरी विल बी गिविंग करंट लाइक दिस। और ये मेटालिक स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप है मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये ब्लू वाला पोर्शन। यहाँ पे फिर वायर लगाया हमने, यहाँ पे फिर से मेटालिक स्ट्रिप है, फिर से मेटालिक स्ट्रिप है, ये फिर से मेटालिक स्ट्रिप है। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं बारी बारी से। और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्टेड है सेंटर से, एंड दूसरा एंड कनेक्टेड है इससे। ओके, मतलब आई ड्रॉ दिस। Wait, this is connected to this. Resistance boxes here. ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं बारी बारी से। तो दिखता कैसे, okay. तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, यहाँ पे ये बैटरी नीचे ड्रॉ किया हुआ है। आई जस्ट ड्रॉ द बैटरी की, ऐसा समझ में है कि मीटर पिच कैसा था। तो सबसे पहले वी हैव अ बैटरी, और ऑफ कोर्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जो ड्रॉ नहीं किया है। और यहाँ पे की ड्रॉ किया हुआ है, तो की भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज की, दिस इज एक्सटर्नल ईएमएफ। की पे डॉट लगा हुआ मींस इट इज क्लोज्ड। उसके बाद ये पूरा कनेक्टेड होता है एक वायर से, 1 मीटर वायर से। देन यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये 1 मीटर वाला लेंथ का वायर है। एंड यहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं एक थिक वायर, और इससे कोई अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा सकते हैं, एक नोन रेजिस्टेंस होना चाहिए। और बीच में होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी अटैच्ड होता है, एक की अटैच्ड होता है, जॉकी बोलते हैं जिसको, और उसको स्लाइड कर सकते हैं, इस वायर एसी के अलॉन्ग स्लाइड कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट भी सेम ही है। सी ए पोटेंशियल से यहाँ पे मीटर स्केल में करंट जा रहा है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू पता नहीं है, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस है।
और ये 1 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर L1 लिखते हैं तो बाकी बचा हुआ लेंथ 100 माइनस L1 हो जाएगा। मीन्स ये लेंथ अगर A to D, if this length is L1, then remaining length will be 100 minus L1. इस डायग्राम को और अच्छे से रिड्यूस करें तो you'll see कि it works on the principle of Wheatstone bridge. तो इसको ड्रॉ करते हैं। सो एक EMF है, there is a key, let us call this unknown resistance as R, capital R, और जो पता है उसको बोलते हैं R0. Let us call this, तो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, and let us call this point as C. C is already taken. Let us call this point as B. So A और B के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, जो अननोन है। ये वाला अननोन है और ये वाला नोन है। और B और C के बीच एक नोन रेजिस्टेंस है, इसको हमने बोला R0. एंड देन फ्रॉम A to D लेट अस सेपरेट दिस। तो इसका AD का जो भी रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। AD का रेजिस्टेंस, लेट अस कॉल इट रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ AD, और B से C तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने ऐसे लिख दिया, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट DC। ठीक है, और B कनेक्टेड है D पॉइंट से द जॉकी, और बीच में उसके गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे जॉकी शो करने की जरूरत नहीं है। सो दिस लुक्स लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन? वी वांट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर टू बी जीरो। वी वांट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज IG, to be zero. We want IG to be zero. देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर इसको जीरो कर दिया तो इफ वी वांट IG to be zero, what will happen? जो भी इसका एक्सटर्नल EMF हो, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर IG जीरो हो जाए, दैट मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। इफ IG इज जीरो, इसका मतलब व्हीटस्टोन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज R into resistance of DC is equal to R0 into resistance of AB. So इसको लिख सकते हैं, the unknown resistance R is equal to R0 into resistance of AB divided by resistance of AD divided by resistance of DC. Let me write this as AD. Okay. So see, as I told you, ये एक मीटर ब्रिज है, 1 मीटर का लेंथ का वायर है, and resistance is directly proportional to the length of the wire. तो यहाँ पे लिख सकते हैं resistance of AD is proportional to L1 and resistance of DC is proportional to 100 minus L1. So we can write resistance of AD divided by resistance of DC, that is equal to L1 divided by 100 minus L1. ऐसे लिख सकते हैं। And if you put that relation over here, I put this relation, this one, in our Wheatstone bridge equation,
I can find out the unknown resistance R. That will be R naught into L1 divided by 100 minus L1. So यहाँ से हम external resistance की value find out कर सकते हैं just by measuring the length at which the current is 0. So L1 is called balancing length. L1 is called balancing length. So at L1, what happens? Ig becomes 0. Ig becomes 0 means Wheatstone bridge condition satisfies. Wheatstone bridge condition satisfies. So कोई भी unknown resistance यहाँ पे लगा के we can find out the value of resistance. यहाँ पे resistance box यूज किया है तो इसका resistance पता है, R नॉट पता है, और AC के resistance से कोई मतलब नहीं है. We just want to know कि हाँ उसका resistance finite है और उसका resistance length L के proportional है, total length के proportional है. तो AD और resistance, AD का resistance और DC का resistance, we can write it as proportional to their corresponding lengths. And then we can take this ratio and we can put it here, and what we get is the formula for getting the value of external resistance. Acha, let us draw this and then we'll write a few lines. Students, turn on your cameras. ऐसे लग रहा है zombies को पढ़ा रहा हूँ मैं. ऐसे ही करना तो मैं तो लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर. So you have stopped my video. स्पेशल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी सबको. एड्रेस भेजना, सबको इनविटेशन देता हूँ मैं कैमरास ऑन करने के लिए. लास्ट पेज को ड्रॉ करने वाला तो था नहीं. यस, रेजिस्टेंस बॉक्स था, वो देख के पता चल जाता है. ये तो ड्रॉ नहीं करने. मेरे स्कूल में तो ऐसा पुराने से डब्बे रखे होते थे, डब्बा देख के पहचाना होता था कौन सा वाला डब्बा है, इलेक्ट्रोलाइट वाला डब्बा है या फिर रेजिस्टेंस वाला डब्बा है. तो ये करें प्रॉपर अरेंजमेंट है यहाँ पे, लेकिन बैटरी नीचे ड्रॉ किया हुआ है. सो डायग्राम इज करेक्ट, यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम, और दिस इज प्रेफरेबल जिससे समझ में आए और इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते होते हैं व्हीटस्टोन वाले फॉर्म में. ठीक है, नोट डाउन करना है. नेहार नोट डाउन नहीं करता है, पता नहीं क्या करते रहता है, स्क्रीन चलाता रहता है. Sir, I have noted down. अभी तक नोट्स अपलोड तो किया नहीं है एक भी. Okay, I'll upload it. ओके क्या, एक महीना बीत गया जब पहली बार बोल रहा था. ट्रेन छूट गई अब. Uh, फिर भी no, अगर sir. मन करे आपका, अगर इच्छा हो तो नोट्स अपलोड कर दीजिएगा, हम चेक कर देंगे. मेहुल, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतनी बार बोलने की जरूरत नहीं थी. अच्छा, रेजोनेट कर रहे हैं. वो पहाड़ के ऊपर से एक को सुनाई देता है ना, वैसा.
अब पूरा नोट डाउन हो गया. Yes, sir. ओके. ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है. प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लिखना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट. हाँ, ये लिखिए है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल. And meter wire is made up of magnetin or constantin. And another thing here is that कि जो इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को या पोटेंशियल को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जॉकी इज ऑलमोस्ट इन द मिडिल, एंड्स पे ना जाए, उससे परसेंटेज एरर कम होता है. बस डी शुड बी इन द मिडिल, दैट रिड्यूसेस द परसेंटेज एरर. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अभी. एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस.